بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی حصہ اول، جماعت نہوم، سبق نمبر 11، انعکاس نور، ریفلیکشن آف لائٹ۔ آج کی ویڈیو میں ہم جن نکات پر غور کرنے والے ہیں وہ ہے کروی آئینے، کروی آئینے کی قسمیں، کروی آئینے سے متعلق اصطلاحات۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ کروی آئینے، اسفیریکل میررز۔ عزیز طلبہ، کرہ یعنی گیند جیسی شکل۔ علم ہندسہ میں آپ نے کرہ سے متعلق معلومات حاصل کی ہے۔ کرہ مختلف مادوں سے بن سکتا ہے، جیسے لوہے سے بنا ہوا کرہ، لکڑی سے بنا ہوا کرہ، شیشے سے بنا ہوا کرہ وغیرہ۔ کرہ پوری طرح اندر سے بھرا ہوا بھی ہو سکتا ہے، جسے ہم ٹھوس کرہ کہہ سکتے ہیں، یا پھر کرہ اندر سے خالی بھی ہو سکتا ہے، جسے ہم کھوکھلا کرہ کہیں گے۔ کروی آئینہ شیشے کے کھوکھلے کرے سے بنایا جاتا ہے۔ شیشے کے کھوکھلے کرے کو کسی مستوی میں کاٹا جائے تو اس سے حاصل ہونے والا حصہ سامنے سے ہمیں دائروی نظر آئے گا، لیکن اس کی سطح ہموار نہیں ہوگی، بلکہ ایک سطح گہری ہوگی، یعنی اندر کی جانب دھسی ہوئی، اور دوسری سطح ابھری ہوئی ہوگی۔ ہمارے سامنے یہ کرہ ہم کو نظر آ رہا ہے۔ اسے دو الگ الگ مستویوں میں دو جگہ سے کاٹا گیا، تو اس سے ہمیں دو حصے حاصل ہوگی۔ دونوں میں سے ہر حصے کی ایک سطح گہری ہے اور دوسری سطح ابھری ہوئی ہے۔ گہری سطح اور ابھری ہوئی سطح دونوں میں سے کسی ایک کو منعکس کرنے والی سطح یا عکسی سطح بنا دی جائے تو دو الگ الگ قسم کے آئینے ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ دونوں آئینے ایک کرے کے حصے ہوں گے، اس لیے انہیں ہم کروی آئینے کہہ سکتے ہیں۔ اگر اس کٹے ہوئے حصے کی بیرونی جانب چاندی یا ایلومینیم کی چمکدار تہ چڑھا دی جائے اور اس پر لیڈ آکسائڈ کی حفاظتی تہ چڑھا دی جائے تو اندر والی جو سطح ہوگی یا گہری سطح، یہ منعکس کرنے والی سطح یا عکسی سطح بن جائے گی، یعنی اس سطح میں چیزوں کا عکس نظر آئے گا۔ اس طرح بننے والے آئینے کو مقعر آئینہ کہتے ہیں۔ اور اگر اندر والی سطح پر چاندی یا ایلومینیم کی تہ چڑھا کر اس پر لیڈ آکسائڈ کی حفاظتی تہ چڑھا دی جائے تو جو ابھری ہوئی سطح ہے اس میں عکس دکھائی دے گا، یعنی یہ سطح عکسی سطح بن جائے گی۔ اس طرح بننے والے آئینے کو مہذب آئینہ کہتے ہیں۔ گھروں میں استعمال ہونے والا آئینہ عام طور پر ہموار آئینہ ہوتا ہے، لیکن گھروں میں موجود کچھ چیزیں ہمیں مقعر آئینہ اور مہذب آئینے کا تصور کرا سکتی ہیں۔ جیسے گھر میں موجود
स्टील की नई चमकती हुई चम्मच। हम जानते हैं कि चम्मच की एक सतह अंदर धसी हुई या गहरी होती है और इसके मुकाबिल की सतह उभरी हुई होती है। तो इस चम्मच की गहरी सतह मुकर्रर सतह कहलाएगी और ये मुकर्रर आईने की तरह काम करेगी। और जो उभरी हुई सतह है ये मुहद्दब सतह कहलाएगी और ये मुहद्दब आईने की तरह काम करेगी। आप खुद तजुर्बा कीजिए। घर में मौजूद स्टील की चमकती हुई चम्मच लीजिए, इसे अपने चेहरे के सामने पकड़िए और अपने चेहरे का अक्स इसमें देखिए। चम्मच को चेहरे के बिल्कुल करीब लाइए और दूर लेते जाइए और अक्स में होने वाली तब्दीलियों का मुशाहिदा कीजिए, इन्हें नोट कीजिए। इन मुशाहिदात की बिना पर अगर हमें तीनों किस्म के आईने या तीनों में से किसी किस्म का आईना दिया जाए तो आईने में अपना अक्स देखकर हम आईने की पहचान कर सकते हैं। जैसा कि मुसत्तह आईना। मुसत्तह आईने के सामने किसी जिस्म को रखने पर आईने में इसका सीधा अक्स नजर आता है और अक्स की जिसामत शय के बराबर जिसामत की होती है। तो मुसत्तह आईने में अक्स सीधा और शय के बराबर जिसामत का नजर आता है। अगर मुकर्रर आईना हो तो इसके बिल्कुल करीब जिस्म रखने पर इस जिस्म का आईने में सीधा और काफी बड़ा अक्स नजर आता है और जिस्म को आईने से दूर ले जाने पर एक मखसूस फासले के बाद अक्स छोटा और उल्टा हो जाता है। तो मकर आईने के सामने जिस्म के करीब होने पर अक्स काफी बड़ा और सीधा नजर आता है, जिस्म आईने से दूर जाने पर एक मखसूस फासले पर अक्स उल्टा नजर आता है। अगर मुहद्दब आईना हो तो इसके सामने रखे हुए जिस्म का आईने में सीधा और छोटा अक्स नजर आता है। इस तरह आईने में अक्स देखकर हम आईने की पहचान कर सकते हैं। आइए अब कुर्रवी आईने से मुताल्लिक चंद अहम इस्तिलाहात को हम समझ लेते हैं। हमारे सामने शीशे का एक कुर्रा मौजूद है और इसका कटा हुआ हिस्सा जिससे मुकर्रर आईना या मुहद्दब आईना बनाया जा सकता है, ये हमें नजर आ रहा है। हर कुर्रे का एक मरकज होता है, जैसा कि यहां पर इस कुर्रे का मरकज, इसे हम सी नाम देंगे। तो ये जो नुक्ता सी है इस कुर्रे का मरकज है। ये नुक्ता सी इस कुर्रे से बनने वाले आईने का मरकज इन्हिना कहलाएगा। यानी इस कुर्रे से जो भी आईना बनेगा उस कुर्रे का ये मरकज इन्हिना होगा। तो मरकज इन्हिना की तारीफ, कुर्रवी आईना जिस कुर्रे का हिस्सा होता है उस कुर्रे के मरकज को इस आईने का मरकज इन्हिना कहते हैं। तो जैसा कि यहां पर नुक्ता सी इस आईने का मरकज इन्हिना होगा। अब हम नुक्ता सी को इस कुर्रे की सतह के किसी नुक्ते से मिला देते हैं। तो इसको हमने नुक्ता ए से मिला दिया। अब ये जो कता सी ए है यहां पर इस कुर्रे का निस्फ कुत्र है, तो यही इस कुर्रे से बनने वाले आईने का भी निस्फ कुत्र होगा और उसे हम कहेंगे इन्हिना का निस्फ कुत्र। यानी कता सी ए जो है
इस कुर्रे से बनने वाले आईने के इन्हेना का निस्फ कुत्र कहलाएगा। और इसकी तारीफ इस तरह है, कुर्रवी आईना जिस कुर्रे का हिस्सा होता है उस कुर्रे के निस्फ कुत्र को उस आईने के इन्हेना का निस्फ कुत्र कहते हैं। तो यहां पर कता CA इन्हेना का निस्फ कुत्र है। ये जो नुक्ता हमको नजर आ रहा है ये इस कुर्रे से बनने वाले आईने की सतह का वसती नुक्ता है। यानी यहां पर हमको इस कुर्रे का जो कटा हुआ हिस्सा नजर आ रहा है इसका ये वसती नुक्ता है, तो इसे आईने का कुतुब कहते हैं। और इसकी तारीफ हम इस तरह बयान कर सकते हैं, कुर्रवी आईने की सतह के वसती नुक्ते को इस आईने का कुतुब कहते हैं। और चूंकि कुतुब को अंग्रेजी में पोल कहा जाता है इसलिए इसे नुक्ता P से जाहिर किया जाता है। तो यहां पर नुक्ता P जो है आईने का कुतुब कहलाएगा। इसके बाद हम एक खत खींचते हैं जो नुक्ता M से होता हुआ नुकात C और P से गुजरता है, यानी कुर्रे के मरकज और कुतुब से गुजरता है। इसे हम महवर खास कहेंगे। और इसकी तारीफ हम इस तरह बयान करेंगे कि मरकज इन्हेना और कुतुब से गुजरने वाले खत को महवर खास कहते हैं। तो यहां पर खत PM महवर खास है। अब ये जो नुक्ता हमको नजर आ रहा है नुक्ता F, ये आईने का नुक्ता मास का है। यहां पर ये नुक्ता F कता CP का वसती नुक्ता है, यानी C से ये जितने फासले पर है P से उतने ही फासले पर वाक़ है। नुक्ता मास्का की तारीफ मुकर्रर आईने के लिए अलग है और मुहद्दब आईने के लिए अलग है। तो आइए इसे हम शक्ल के जरिए समझ लेते हैं। यहां पर अलामती तौर पर मुकर्रर आईना और मुहद्दब आईना दिखाया गया है। पहले हम मुकर्रर आईने का नुक्ता मास्का समझ लेते हैं। यहां पर C मरकज इन्हेना है और नुक्ता P आईने का कुतुब है। यहां पर हम चंद ऐसी शुआएं लेंगे जो महवर खास के मुतवाजी है और एक दूसरे के भी मुतवाजी है, और ये तमाम शुआएं इस मुकर्रर आईने पर वकूअ पजीर होती हैं। यहां से मुनाकिस होने के बाद ये तमाम शुआएं एक मखसूस नुक्ते से गुजरती हुई मुनाकिस होती है। ये जो मखसूस नुक्ता है यही इस मुकर्रर आईने का नुक्ता मास्का है। तो इसकी तारीफ हम इस तरह बयान कर सकते हैं, मुकर्रर आईने पर पड़ने वाली महवर खास के मुतवाजी शुआएं इनेकास के बाद जिस मखसूस नुक्ते पर मिलती है या जिस मखसूस नुक्ते से गुजरती है उसे मुकर्रर आईने का नुक्ता मास्का कहते हैं। अब हम मुहद्दब आईने का नुक्ता मास्का समझ लेते हैं। यहां पर भी हम महवर खास के मुतवाजी मुहद्दब आईने पर वकूअ पजीर होने वाली चंद शुआएं लेते हैं। अब ये जो शुआएं हैं ये इस तरह मुनाकिस होती है। तो शक्ल में हमें साफ नजर आ रहा है कि ये तमाम शुआएं एक दूसरे से दूर जाती हुई नजर आ रही है, यानी ये आपस में मिलती नहीं है। लेकिन इन तमाम शुआओं को पीछे बढ़ाने पर ये एक नुक्ते पर मिलती है।
यानी ये तमाम शुआएं आईने के पीछे के एक मखसूस नुक्ते से निकलती हुई महसूस होती हैं। तो यही नुक्ता एफ है, यानी मुहद्दब आईने का नुक्ता मास का। तो मुहद्दब आईने का नुक्ता मास का हम इस तरह बयान कर सकते हैं, मुहद्दब आईने पर पड़ने वाली महवर खास के मुतवाज़ी शुआएं इनेकास के बाद जिस मखसूस नुक्ते से निकलती हुई लगती हैं उसे मुहद्दब आईने का नुक्ता मास का कहते हैं। क्योंकि नुक्ता मास का को अंग्रेजी में फोकल पॉइंट कहा जाता है, इसीलिए इसे नुक्ता एफ से जाहिर किया जाता है। अब हम देखते हैं तूले मास का। तो नुक्ता मास का और आईने का कुतुब, इनके दरमियानी फासले को तूले मास का कहते हैं। यानी कुतुब से लेकर नुक्ता मास का तक की लंबाई तूले मास का होती है। और इसकी तारीफ है, आईने के कुतुब और नुक्ता मास का के दरमियानी फासले को तूले मास का कहते हैं। तो यहां पर कता पीएफ की लंबाई तूले मास का है। तूले मास का और इन्हिना का निस्ब कुद्र, इसमें एक खास ताल्लुक होता है। यहां पर कता सीपी आईने का निस्ब कुद्र है, जिसे हम इन्हिना का निस्ब कुद्र कहते हैं, और एफ जो कि नुक्ता मास का है। तो यहां पर तूले मास का की जो लंबाई है वो इन्हिना के निस्ब कुद्र का आधा होगी। इसे मासावात की सूरत में हम इस तरह लिख सकते हैं, तूले मास का बराबर 1/2 ज़र्ब इन्हिना का निस्ब कुद्र। तो उम्मीद है इस वीडियो में समझाई गई इस्तिलाहात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।